you all are fine and healthy. We have started our chapter number 5, acid, base and salt. है ना? We have already studied about the acid and base in part 1. है ना? What we have learned about acid, that the substance which are sour in taste, they are acid. है ना? ऐसे सब्सटेंस जो कैसे होते हैं टेस्ट में, सॉर होते हैं, खट्टे होते हैं, जस्ट लाइक स्वीट लेमन, ऑरेंजेस, दे आर कंटेन एसिड. एंड द सब्सटेंस व्हिच आर बिटर इन टेस्ट, है ना, बिटर इन टेस्ट के साथ जो सोपी सब्सटेंस हो, जब उनको आप टच करते हैं तो वो कैसे होते हैं, सोपी होते हैं. सो दे आर नोन एज बेस, है ना. एंड देयर टू टेस्ट द एसिड एंड बेस वी यूज द इंडिकेटर्स, है ना. बहुत सारे हम इंडिकेटर्स हमने देखे थे, नेचुरल इंडिकेटर्स, है ना, टर्मरिक, चाइना रोज. These all are the indicators which we use to test the substance which is acid or base. In this part, we will study about neutralization. Okay, in part 2, we will study about neutralization. So, what is neutralization? Let's see. We have learned that acid turn blue litmus wet. है ना, मैंने आपको बताया था acid किसमें convert होता है? It converts into red. And base is turn red litmus to blue. Let us see what happens when an acid mixes with the base. आप सोचो, अभी तक हम एसिड का टेस्ट अलग करते हैं, बेस का टेस्ट है. अब सोचो एसिड और बेस साथ में मिक्स हो जाएंगे तो क्या होगा? So see, we are going to use an indicator you have not used so far. It is called phenolphthalein. Read this word pronunciation correct. Phenolphthalein. What will do the pronunciation of PHENOL? PHENOL. We call it phenolphthalein. What we call it? Phenolphthalein. This is an indicator which we have not used till now, but to test the acid and base we use the phenolphthalein indicator. This is a chemically third indicator. Okay. In part 1 we have discussed there are the natural indicators, turmeric, litmus paper, China roll, and the phenolphthalein is a chemical indicator. Now, it is evident when the solution is basic, phenolphthalein gives a pink color. एक प्रूव किया गया है कि अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो वो कौन सा कलर देगा? पिंक कलर देगा. ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन कलरलेस. और एसिडिक होगा तो वो कैसा होगा? कलरलेस. ओके स्टूडेंट्स, इफ द सॉल्यूशन इज बेसिक इट टर्न्स इनटू द पिंक कलर, एंड इफ इट इज एसिड इट इज व्हाट? इट विल बी कलरलेस. व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद बेसिक सॉल्यूशन, एसिड को आप किस में डाल रहे हो? बेस में डालोगे. सो बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. दोनों जन क्या कर देंगे? एक दूसरे का जो इफेक्ट है उसको क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे. न्यूट्रलाइज मींस खत्म कर देंगे. ओके, व्हेन एन एसिड मिक्स विद बेस इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. व्हेन एसिड सॉल्यूशन एंड द बेस सॉल्यूशन आर मिक्स्ड विद इन अमाउंट, बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ बेस आर डिस्ट्रॉयड. जब भी एसिड को बेस में डालते हैं तो एसिड का एसिडिक का एसिड नेचर और बेसिक का बेस नेचर वो क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है. The resulting solution is neither acidic nor basic. अब देखो, जब दोनों का इफेक्ट ही खत्म हो गया, एसिड ने अपना इफेक्ट खत्म कर दिया, बेस ने इफेक्ट अपना खत्म कर दिया, तो मतलब सॉल्यूशन ना एसिडिक कॉल होगा ना बेसिक होगा. So in neutralization reaction, heat is always produced. So this reaction is known as neutralization. Okay, when the effect of acid and basic is destroyed, the reaction is known as neutralization. And in neutralization, heat is always produced. Heat हमेशा क्या होती है? Produce होती है. The evolved heat raises the temperature of the reaction mixture. जिसमें भी आपने एसिड और बेस को मिक्स किया उसमें क्या होगा? बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है. इसका टेम्परेचर कैसे हो जाता है? राइज हो जाता है. In neutralization, a new substance is formed. This is called salt. जब भी एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमेशा क्या बनता है? Salt is formed. Just reminder that when acid and base react with each other, the final product is always salt. Salt may be acidic, basic or neutral in nature. Salt तीनों हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है. न्यूट्रल मीन्स ना एसिडिक ना बेसिक. Thus neutralization can be defined as follows. अब हम न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? The reaction between an acid and the base is known as neutralization. जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, that is known as neutralization.
Salt and water are produced in this process with the evaporation of heat. जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। सॉल्ट और वाटर कंपल्सरी कौन से दो कंपाउंड्स हमको मिलते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, और इसके साथ क्या इवॉल्व होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। This is a reaction. Acid plus base means acid react with base gives salt plus water. Salt और water हमें देती है, इसमें हीट हमेशा क्या होती है, इवॉल्व होती है। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है रिएक्शन का। Hydrochloric acid, the formula of hydrochloric acid is HCl. About these names you will study in the higher classes. So here you will see the names hydrochloric acid, HCl. What is the formula of hydrochloric acid? HCl. React with sodium hydroxide. वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। तो इट गिव्स सोडियम क्लोराइड, वो क्या देगा हमें, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड वी आर यूजिंग इन अवर डे टू डे लाइफ, दैट इज सॉल्ट एंड प्लस वाटर। नाउ न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अब हम न्यूट्रलाइजेशन अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। सो लेट्स सी हाउ वी यूज द न्यूट्रलाइजेशन इन अवर डे टू डे लाइफ। So first we use the neutralization in digestion process. In digestion process means when our food is not digested. So how we use the neutralization process? So see, our stomach contains hydrochloric acid. ये हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है कि हमारा जो स्टमक होता है वो रिलीजेस द हाइड्रोक्लोरिक एसिड. It helps us to digest food. What the work of the hydrochloric acid? To digest our food. But too much of acid in the stomach causes indigestion. लेकिन कभी कभी हमारा स्टमक में जब एसिड की लेवल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, so at that time we suffer a constipation and we are not feel comfortable, है ना? So it causes the indigestion. Sometimes indigestion is painful. कभी कभी indigestion कैसा होता है, it is very painful. Sometimes we feel a pain in the stomach. So why? Because of indigestion. So to relieve indigestion, we take an antacid such as milk of magnesia, which contains magnesium hydroxide. कभी कभी क्या होता है, we take a antacids. Antacids का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, that is magnesium, milk of magnesia. And the milk of magnesia में क्या होता है, it contains the magnesium hydroxide. Magnesium hydroxide एक केमिकल होता है जो बेस होता है, ठीक है? तो ये एसिड का हमारे स्टमक में क्या रिलीज हो, एसिड रिलीज हो रहा है, और एसिड को जब हम क्या दे रहे हैं, बेस दे रहे हैं ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, है ना? तो एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, इफेक्ट ऑफ एसिड विल डिस्ट्रॉय एंड द इफेक्ट ऑफ बेस विल आल्सो डिस्ट्रॉय। दोनों का ही इफेक्ट हो जाएगा, तो हमारी बॉडी जो वर्क कर रही है जो हमारा, वो प्रॉपर हो जाएगा। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। जो भी एसिड एक्सेस हो गया वो क्या हो जाएगा, खत्म होता जाएगा। जैसे जैसे बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता जाएगा तो जो एसिड की क्वांटिटी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, so it is indigestion process. So first we use the neutralization process in indigestion. When we suffer indigestion, we take a basic solution. हम सोडा लेते हैं, सोडा is also a basic substance, है ना? तो एसिड और बेस आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, जो एसिड का एक्सेस हो गया है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। So next we use in ant sting. कभी हमें कोई आंट काट के जाता है, कोई भी इंसेक्ट अगर बाइट हमें करके जाता है, so what we will do? The sting of an ant contains formic acid. कभी भी कोई आंट या इंसेक्ट हमको बाइट करता है, कट करता है, तो वो कौन सा एसिड हमारी बॉडी में रिलीज करता है, इट इज फॉर्मिक एसिड, ठीक है? वो हमारी बॉडी में कौन सा रिलीज करता है, फॉर्मिक एसिड। Ant releases which acid? It is formic acid. Stomach releases hydrochloric acid and ant formic acid. When an ant bites, it injects the acidic liquid into the skin. वो जैसे हमारे स्किन में बाइट करता है, वो पूरा एसिड हमारी स्किन, हमारी बॉडी के अंदर डाल देता है। So the effect of sting can be neutralized by rubbing moist baking soda. हम जैसे आपको स्टिंग करता है तो हमारी मदद सॉल्ट लगाती है। आपने देखा अपनी लाइफ में, जैसे मधुमक्खियां, बीज, कोई भी इंसेक्ट आपको बाइट करता है तो हमारी मदद जल्दी से सॉल्ट लगाती है ना, सॉल्ट लगाती है, और मे बी बेकिंग सोडा ऑल्सो। द नेम ऑफ द बेकिंग सोडा इन केमिस्ट्री सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद रखना, the name of the baking soda is sodium hydrogen carbonate. Okay, और calamine solution which contains zinc carbonate, और calamine solution भी एक हमारे घरों में अवेलेबल होता है, वो लगाते हैं। उसमें क्या होता है, जिंक कार्बोनेट। तो ये दोनों जो है बेकिंग सोडा और जिंक कार्बोनेट, ये बेस होते हैं। तो एसिड जैसे हमारी बॉडी में स्किन में रिलीज हुआ तो ये दोनों बेस क्या कर देंगे, उसका इफेक्ट खत्म कर देंगे। सो इन दिस वे वी यूज
यूज द आर्नस्टिंग, है ना, आर्नस्टिंग न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हम आर्नस्टिंग में यूज करते हैं। जैसे आर्न हमारी बाइट किया तो फॉर्मिक एसिड रिलीज हुआ, है ना, तो अब फॉर्मिक एसिड का इफेक्ट हमें खत्म करना है। सो हाउ वी विल डिस्ट्रॉय द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड? बाय यूजिंग द बेकिंग सोडा और द कैलामाइन सॉल्यूशन। नेक्स्ट, सॉइल ट्रीटमेंट। अब सॉइल ट्रीटमेंट में हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे यूज करते हैं? एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। जैसे जैसे आप फर्टिलाइजर्स यूज करते जाते हैं आपकी सॉइल कैसी हो जाती है? एसिडिक हो जाती है। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेक। अगर आपकी सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक है या बहुत बेसिक है तो आपका प्लांट कभी भी ग्रो नहीं होगा। सो व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक, इज बेसिक ट्रीटमेंट विद बेसिस लाइक क्विकलाइन, कैल्शियम ऑक्साइड और द स्लेज-लाइन। देखो यहाँ पे एक चीज पता है, अगर सॉइल इज टू एसिडिक, अगर एसिडिक है तो आप क्या यूज करोगे? बेस यूज करोगे। सो नेम ऑफ द बेस व्हिच इज यूज्ड इन अ सॉइल ट्रीटमेंट आर क्विकलाइन। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्विकलाइन? इज कैल्शियम ऑक्साइड। यू हैव टू लर्न दिस नेम्स। The chemical name of quicklime is calcium oxide और the slaked-lime is calcium hydroxide. ठीक है, तो if the question will come, which base we use in a soil treatment? So answer is quicklime, calcium oxide or the slaked-lime, calcium hydroxide. Okay. If soil is basic, organic matter is added to it. Organic matter releases acid which neutralize the basic nature of the soil. अगर सॉइल बहुत ज्यादा बेसिक है तो आप ऑर्गेनिक मैटर्स डालते हो, जैसे मैन्योर है और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर्स, काउ डंग होते हैं, ये सब हम उसमें क्या करते हैं? डालते हैं। तो ये सब डालने से जो हमारा बेसिक सॉल्यूशन है वो क्या हो जाता है? धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज फैक्ट्री वेस्ट। So the waste of many factories contain acid. जो फैक्ट्रीज के भी वेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? They contain the acid. If they are not allowed to flow into the water basin, the acid will kill fish and other organisms. अब जैसे जो फैक्ट्री वेस्ट होता है फैक्ट्री से जो हमारे वाटर बॉडीज में जो फैक्ट्री वेस्ट जाता है, इट कंटेन्स टू मच एसिड, है ना, एंड व्हेन वी रिलीज द एसिड इन वाटर बॉडीज और द फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म विल बी डाइड बिकॉज दे आर नॉट एबल टू टेक द एसिड फ्रॉम वाटर। अगर वो एसिड लेते हैं अपनी बॉडी में, सो दे विल डाई। The factory waste are therefore neutralized by adding the some basic substance. इसलिए हम फैक्ट्री वेस्ट को सबसे पहले क्या ट्रीट करते हैं? उनको हम बेसिक सब्सटेंस के साथ ट्रीट करते हैं, सो एसिड का जो इफेक्ट है वो पूरा क्या हो जाए? डिस्ट्रॉय हो जाए। So this means that the we use in our neutralization reaction in our day-to-day life, in ingestion, in harvesting, in factory waste, and in a soil treatment. These are the some places where we use the neutralization reaction. Okay. So the last topic is our acid rain. Have you ever heard about damaging effect of acid rain? आपने कभी एसिड रेन सुना है? एसिड रेन से ही हमको पता चल रहा है कि हमारी रेन कैसी होगी? एसिडिक होगी। So as the name indicates, the rain containing ounces of acid is called an acid rain. ऐसी रेन जिसमें बहुत सारा एसिड होता है, we call it a acid rain. Rain become acidic because carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, which are released into air as dissolved in air drops to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid. देखो जैसे जैसे हम सब व्हीकल्स यूज करते हैं, व्हीकल में से क्या होता है? बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सब पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? हमारे वाटर ड्रॉप्स में जो होते हैं उसके साथ डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे ये डिसॉल्व होते जाते हैं तो तीन एसिड्स बनते हैं, which are three acids: carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid. Whenever the pollutants like carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide react with the water, they form three acids. The acid names are carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid. Okay, so these acids will come to earth in the form of rain. That rain is known as acidic rain. So acidic rain cause damage to buildings, historical monuments, plants and animals. Acid rain बहुत सारे effects damage करती है, जस्ट लाइक हमारे बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करती है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल। अब आप जब ताजमहल देखोगे, इट लाइक्स द येलोविश कलर, इट नॉट लुक लाइक अ व्हाइटिश कलर। व्हाई? बिकॉज ऑफ द एसिड रेन। जो आगरा के जो ताजमहल है उसके नियर एक बहुत केमिकल बिल्डिंग है, उस केमिकल बिल्डिंग में से बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट रिलीज होता है। उस पॉल्यूटेंट, वो सारे पॉल्यूटेंट हमारे रेन ड्रॉप के साथ क्या करते हैं? मिक्स हो जाते हैं, उसकी तरह से वहां पे बहुत ज्यादा एसिड रेन होती है। तो एसिड रेन क्या करती है? हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को क्या करती है? डिस्ट्रॉय करती है। प्लांट्स और एनिमल्स को भी क्या करती है? डिस्ट्रॉय करती है। सो एसिड रेन इज वेरी
very harmful for our earth. Okay students, now this is our home assignment. What is an acid rain? Write about the acid rain and neutralization effect in our everyday life. Thank you. Have a nice day ahead.